So in the starting of this series, the plan was that the videos would come in series. कि मैं 5-6 वीडियोस बनाता था 20-20 मिनट के, बट यार एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई एम नॉट गेटिंग मच ऑफ टाइम एंड आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप सारे वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो जल्दी. एंड आई थिंक इट हैज़ बीन 15 to 16 days since the previous video was uploaded. So this is a 1 hour video. This is a long video, 1 hour, or it may take more or even less, but this is definitely a long video. And in this particular video I am going to talk about exercises, daily habits, the diet that you should take, the daily habits that are damaging your eyes and how you need to replace them, all about that. And at the end I will be making an important announcement for it as well. Okay, so the equipments that you need as of now is eye cup. Eye cup is a very important equipment that you would be needing, जिसको आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे. यू कैन आप मैंने उसकी जो लिंक है डाल दिया, आप अमेजोन से ले सकते हो. बट अगर आप एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको लगे कि आपकी सिटी में मिल जाए अगर आई कप, देन वेरी गुड. ठीक है, अगर नहीं मिले देन यू कैन ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर लिंक एंड order it from Amazon. The second particular thing to be kept is cotton pad. Cotton pad का आपको बेसिकली जो काम है वो है जब आप वेपर लेके खत्म करके आप कूलिंग सेशन करोगे तो कूल है, कूल करने के लिए. द थर्ड थिंग दैट यू वुड बी नीडिंग इज अ टेनिस बॉल. टेनिस बॉल पर्टिकुलरली ग्रीन कलर का हो तो बहुत अच्छा है, एंड यू वुड बी नीडिंग दैट फॉर द बॉल ऑफ गेम ऑफ बॉल, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा. तो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू वुड बी नीडिंग. एक पर्टिकुलर थिंग है जो कि अगर आप एंड तक वीडियो को देखोगे तो ऑफ कोर्स आई एम डूइंग अ सेमिनार, so sorry, not a seminar, a webinar actually. So in that particular thing अगर आप उसमें आओगे then you can order a जल नीति mug. देखो इस वीडियो में I'm not talking about the जल नीति mug, but if you would come into that particular webinar then I will tell you the use of जल नीति also, because जल नीति is like you need someone to tell you how to do it, because it is a bit of complicated task but doable. So you need to buy a jal neti mug. This is optional. So these are all the things that you need to take in care, and yes, that's it. So starting with the first exercise of the video, it is sun treatment. Sun treatment में you have to stand, ठीक है, with your face to the sun and try to do this exercise at around in the evening or early morning, around 8 to 9 o'clock better रहता है, or in the evening from 4 to 5 o'clock. You have to swing from one foot to other in a pendulum motion, ठीक है, such that कि आप स्टेशनरी नहीं हो. आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है जैसे you are just greater than the length of your shoulders and swing on that. So that is eye exercise. You have to do it for around 10 minutes. You have to around 1 minute. Now just after you finish doing the sun treatment, okay, I will give you the link on at the end of the video कि eye cup आपको कहाँ से लेना है. So you will have a eye cup in a shape such that water will hold, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, and you will be able to hold some water around it and 1 मिनट तक उसको रखना है both of the eyes में. ड्रिंकिंग वाटर यूज करना है, एंड देन ऑन ब्लिंक, जस्ट आपकी आंख अंदर नहीं चाहिए पानी के अंदर, एंड ब्लिंक अराउंड 8 to 10 times. ओके, जस्ट आफ्टर यू हैव फिनिश्ड आई वॉश, आपने आई वॉश कर लिया, यू हैव टू स्टार्ट विथ एक्यूप्रेशर एंड मसाज, आई मसाज. एक्यूप्रेशर में आपको क्या करना है, आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, आप जो 2 पॉइंट्स देख रहे हैं उन सबको प्रेस करना है, ठीक है. ये पॉइंट, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को. अब जो 2 आप डॉट्स देख रहे हैं वो दोनों डॉट्स को अलग अलग नहीं करना है. योर फिंगर शुड बी इन बिटवीन 2 डॉट्स, राइट. ये एंड दिस वन इन द मिडिल वन, एंड ये सेंटर वाला जो है इसको भी आप प्रेस करेंगे. नाउ यू हैव टू प्रेस नॉट लाइटली, थोड़ा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वरना कोई फायदा नहीं है उसका. सो दैट द नर्व्स दैट आर देयर आर फोर्स्ड अपॉन, थोड़ा प्रेशर लगना चाहिए. ऑफ कोर्स यू हैव टू एक्सर्ट सम प्रेशर, नाम ही एक्यूप्रेशर, सो दैट
इट इज बेनिफिशियल। नाउ उसके बाद जस्ट फॉर ओवर 1 मिनट और इवन मोर डिपेंडिंग अपॉन आपके पास टाइम कितना एंड हाउ यू आर कंफर्टेबल विद, मिनिमम 1 मिनट टू 2 मिनट आपको इन सारे पॉइंट्स पे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेंटर वाला पॉइंट जो कि आपने पहले भी देख लिया, उस पे मिडिल पॉइंट इस पे, राइट पॉइंट इस पे एंड जस्ट बिलो इस पे प्रेस करना है। नाउ आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको प्रेस करना है और दूसरा आपको मसाज करना है। मसाज कैसे करनी है इन पॉइंट्स पे, और जो आपने पॉइंट्स पहले देखे, आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको अपने इंडेक्स फिंगर से करना है अराउंड 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज विथ सम अमाउंट ऑफ प्रेशर। अच्छा खासा प्रेशर इसमें लगना चाहिए आपके आईज के ऊपर, ऑफ कोर्स आपके आईज के ऊपर नहीं, आपके आईब्रोज और जो भी पॉइंट्स है उनके ऊपर, फॉर इट टू बी बेनिफिशियल, तभी ये कारगर होगा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉइंट्स ऑन फेसेस जहां पे आपको प्रेस करना है और मसाज करनी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स बोथ। अब हैंड पे आपके जो थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच का जो पॉइंट है उसको आपको प्रेस करना है फॉर अबाउट 1 मिनट और फॉर अबाउट 10 टाइम्स 20 टाइम्स जो भी आप कर सकते हैं। एंड दिस शुड बी ऑफ कोर्स आपका जो खाने से 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटे बाद ही करना है, मतलब डाइजेशन को भी एक तरीके से ये इफेक्ट करता है या फिर इसकी जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स एज मेंशन्ड, ठीक है। एंड यू हैव टू डू इट इन अ सिटिंग पोजीशन फॉर अराउंड 1 मिनट और फॉर अराउंड 10 मिनट्स, फॉर अराउंड 10 मूव्स ईच। 10 बार आप इसको प्रेस करिए, 10-10 बार दोनों उंगली को। ओके, द सेकेंड पॉइंट ऑन द फिंगर्स जिसको आपको प्रेस करना है, एक्यूप्रेशर ऑफ कोर्स अप्लाई करना है अपने थंब से, वो हैं ये सारे के सारे पाम्स, जो आपके जो फर्स्ट सेगमेंट्स हैं फिंगर्स के उसको। एंड यू हैव टू प्रेस इट ऑन 2 साइड। जैसे आप इमेजिन करो कि आपके इस थंब का या फिर आपके जितने भी फिंगर्स हैं उनका एक फेस होगा तो 2 आईज होंगी, तो ये 2 आईज आप इमेजिन करिए एंड अराउंड इन्हीं 2 पॉइंट्स पे आप 10-10 बार प्रेस कर लीजिए दोनों पॉइंट्स पे। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम बट डू इट रेगुलरली फॉर 10 टाइम्स बोथ हैंड्स। ओके, टोज के बारे में भी है। टोज को आप चाहे तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, बेटर होगा कि आप करें, ज़्यादा स्किप करने से तो बेहतर ही है। बट इफ़ यू आर फीलिंग कि भाई बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप बोझिल ना हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर बोझिल हो जाएंगे ना तो आप 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, पर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करिए कि हैबिचुअल आप हो जाए। ऐसा नहीं कि 10 दिन आपने रगड़ के कर दिया एंड 11th डे यू आर नॉट हैविंग द विल पावर टू डू इट, वैसा नहीं करना है। बिकॉज आपने जैसे ही एक्सरसाइज आप करना रोकेंगे वैसे ही आपकी प्रोग्रेस भी होना रुक जाएगी, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल वे टू क्योर इट। एंड हर टाइम पे ऑफकोर्स इफ आर डूइंग इट नेचुरली, एज आप रनिंग करते हैं, अगर आप 2-3 महीने बहुत अच्छी रनिंग करते हैं तो योर मसल्स गेट ट्रेन, बट अगर आप बैठ जाएंगे अराउंड उसके 3 महीने तक आप बैठे रहेंगे काउच पे और टीवी देखते रहेंगे, देन ऑफकोर्स योर मसल्स विल ऑल्सो गेट लूज। सेम विथ आवर आईज। पाल्मिंग में आपको अपने हाथों से मोर स्पेसिफिकली पाम से, जो कि ये पाम है, जो ये एरिया है, इससे अपने आंखों को ऐसे ढकना है कि आपको पूरी की पूरी जो लाइट आ रही है वो आनी नहीं चाहिए, कंप्लीट डार्कनेस। ओके, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी हार्ड सरफेस पे आपको अपने एल्बोज नहीं रखने, कि आप 5 से 10 मिनट तक रख नहीं पाएंगे, तो जस्ट पुट अ कुशन या पिलो जो भी है उसके ऊपर आप हाथ रख के अराउंड डू इट फॉर 10 मिनट्स। ओके, ब्लॉक ऑल द लाइट्स। उंगली नहीं आनी चाहिए कि इससे आप पूरी लाइट ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, पाम आना चाहिए, दिस इज नोन एज पामिंग। सो आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि आपको कैसे पाल्मिंग नहीं करनी है। कभी भी अपने पूरे पाम को अपने आंखों के ऊपर रखना है, एक गैप बना के थोड़ा सा जो हॉलोनेस रहता है उसको, एंड नॉट अ स्पेक ऑफ लाइट शुड बी एंटरिंग योर आईज, कंप्लीट डार्कनेस। आपको एक छोटा सा प्यारा सा गाना ऑफकोर्स लगा के सुन सकते हो, दैट इज गुड, पीस रहनी चाहिए माइंड में, और यू कैन बी कंप्लीटली साइलेंट। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको नींद नहीं भी आती है तो भी नींद आने लगती है, ये एक्सरसाइज ऐसी है। सो आफ्टर यू हैव डन पाल्मिंग, आपने पाल्मिंग कर ली है 10 मिनट और 5 मिनट अकॉर्डिंग टू यू, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, वो है बॉल एक्सरसाइज। अब इस बॉल के भी एक्सरसाइज के भी 2 तरीके, एक है यू शेप में और एक है वी शेप में।
तो वी शेप क्या है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, टेक द बॉल ऑन योर राइट हैंड, बाउंस इट इन सच अ वे कि आपके फिंगर, आपके जो फिट है, आपकी जो बॉडी है फिट है, उसके जस्ट सेंटर पे ये बाउंस करें एंड इट विल कम ऑन टू योर लेफ्ट हैंड। तो वो आप देख रहे हैं, अगर आप बॉल की मोशन को फॉलो करेंगे तो एक वी बन रहा है। आपको क्या करना है, आपको बॉल की जो मूवमेंट है उसको फॉलो करना है, एंड जस्ट आप जैसे ही दूसरे हाथ में पकड़ते हैं बॉल को, यू हैव टू ब्लिंक फॉर वन टाइम। अगेन आपने बॉल लेफ्ट हैंड में ले लिया, लेफ्ट हैंड से आप फिर से बॉल की मूवमेंट को फॉलो करें, जैसे ही आपने राइट हैंड में उसको कैच किया, टेक ब्लिंक फॉर सम टाइम। ये आप कर सकते हैं 20 टाइम्स। तो ये हो गया वी वे ऑफ डूइंग इट। अब एक मैं बताता हूँ आप गलती क्या कर सकते हैं इसमें। अब गलती ये कर सकते हैं कि यू विल बाउंस इट ओवरली, यानी आप एक हाथ से दूसरे हाथ के बजाय आप बहुत ज्यादा उसको ऊंचा उछाल सकते हैं हाइट पे, एंड यू विल हैव टू शिफ्ट योर फेस अप। आपका फेस की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी आई बॉल की मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बाउंस इट टू हाई, ओके। द अदर वे ऑफ डूइंग इट इज यू, दैट इज उल्टा यू बनेगा। जैसे कि आपने बाउंस किया तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए एक वी फिगर बना, वैसे ही जैसे ही आप यू फिगर बनाएंगे उल्टा यू बनेगा। यू विल कीप इट ऑन योर लेफ्ट हैंड, बाउंस इट, देन ऑन टू योर राइट हैंड, ठीक है। हाइट ऑफ द बॉल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आपके जस्ट फेस के आसपास आनी चाहिए। स्मॉल यू जो उल्टा यू बना रहा है, वी फॉर्मेट में आपके आंख के सामने आनी, आपके फेस के लेवल पे आनी नहीं चाहिए, जस्ट ऑन द लेवल ऑफ योर आईज, और वो आपकी हाइट पे डिपेंड करेगी। नाउ आफ्टर यू हैव डन बॉल स्विंग, उसके बाद आपको करना है बार स्विंग। बार स्विंग अब जरूरी नहीं कि आपके पास ये इक्विपमेंट हो जिसको आप देख के स्विंग कर सकते हैं एक मूवमेंट पे। जस्ट टेक एनी वर्टिकल बार, कहीं पे भी 5-6 वर्टिकल बार हो जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, जिस पे आप साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे तो आपकी जो विजन है उसमें फिक्स्ड रह पाए एंड आप स्विंग कर पाए। बस मेक इट श्योर लाइक दैट। अब किसी को आपके घर में हो सकती है विंडोज हो ऐसी, तो टेक सम डिस्टेंस फ्रॉम द विंडो एंड डू इट। जस्ट एज कि आपको जो सारे बार्स हैं वो अराउंड मल्टीपल बार्स आपको दिख रहे हो 5 to 6 टाइम्स, 5 to 6 बार्स, एंड जस्ट डू इट फॉर 1 minute। And after you have come to from one end to another end, blink, left to right आप चले गए, blink, right to left आए, फिर blink। So you can do it for 1 to 2 minutes। So after you have done the bar swing, you will do the eye movement exercise। eye movement exercise में आपको क्या करना है, अप डाउन देखना है आपको अल्टरनेटिवली, विदाउट मूविंग योर हेड, जस्ट योर आई बॉल्स। यू हैव टू डू इट फॉर 5 टाइम्स, ठीक है। 5 टाइम्स अप, 5 टाइम्स डाउन। अगेन आफ्टर डूइंग दैट, कीप योर फिंगर्स एट सच अ वे कि आप लेफ्ट राइट आपकी आईज जानी चाहिए विदाउट अगेन मूविंग योर हेड। अगेन फॉर 5 टाइम्स। यू कैन इंक्रीज इट डाउन द लेन, आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, 20 टाइम्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम एंड डिपेंडिंग अपॉन सस्टेन हो पा रहा है कि नहीं आपसे। सो इफ यू हैव हाई पावर देन यू शुड डेफिनेटली डू 10 टाइम्स। हाई पावर का मतलब है 3 डायोप्टर से जिनकी ज्यादा पावर है। So after you have done all these exercises, ending upon I think eye movement, आपको करनी है कैंडल रीडिंग। अब कैंडल रीडिंग में आपको क्या करना है कि you have to close all the lights, close the room, बहुत ही completely dark कर लेना है रूम को, ठीक है। लाइट अ कैंडल, आपको पिक्चर में तो लैंटर्न दिख रही है, लाइट अ कैंडल एंड आपको एक पिक्चर देख रही होगी। इस पिक्चर को मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डाउनलोड इट, प्रिंट इट इन A5 साइज, A5 साइज में प्रिंट करा के लैमिनेट कर लो इसको, एंड यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर फाइन चार्ट फ्रॉम आई। और एक बार में आपको अराउंड 3 to 4, यहाँ पे तो 4 या 5 वर्ड्स लिखे हैं, यू हैव टू रीड 3 to 4 और 4 to 5 वर्ड्स एक बार में। देन ब्लिंक, then again read 3 to 4 or 4 to 5 words, then again blink, then again read। शुरुआत जब आप करोगे तो read the first line only पहले दिन, दूसरे लाइन read the first 2 lines, तीसरे दिन read the first 3 lines, चौथे दिन, एंड ऐसे करते करते स्लोली आप एंड तक जो फाइन चार्ट प्रिंट है उसको आप पढ़ पाएंगे। रिमेंबर A5 प्रिंट जो कि इतना छोटा होता है, A4 साइज से छोटा होता है A3 प्रिंट। You have to do that reading, that is candle reading। Now see, जैसे ही आपने कैंडल रीडिंग कर ली, ठीक है,
तो कैंडल रीडिंग में एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आफ्टर यू हैव डन द कैंडल रीडिंग, एक बार आपको कैंडल रीडिंग कंप्लीट डार्कनेस में करना है और जस्ट उसके बाद उसी चीज को रीड करना है बाहर जाके यानी इट शुड बी लाइट, कंप्लीट नेचुरल लाइट। उसमें आपने जैसे एक लाइन नहीं पढ़ी तो एक ही लाइन पढ़ी है, ठीक है। एंड ये आपको करना है, कैसे करना है, यू हैव टू क्लोज वन ऑफ योर आईज, यानी अगर आप पहले आपको लेफ्ट आई से ये करना है, फिर आपको लेफ्ट आई राइट आई से करना है, फिर आपको लेफ्ट आई से करना है। एक आई आपकी क्लोज होनी चाहिए, या तो आप हाथ रख सकते हैं या सिंपली आप सिंपली एक आई पैच आता है वैसे कुछ बना सकते हैं घर में मम्मी को, कि बस एक कपड़े से डाल के, जिससे मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, आपको कोई भी जो लाइट वगैरह ना आए और आप कुछ भी उस पर्टिकुलर आई से ना पढ़ पाए, एंड यू कैन एडजस्ट इट इन बिटवीन, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। आफ्टर यू हैव डन द कैंडल रीडिंग, यू विल हैव टू डू रीड स्नेलन्स चार्ट। अब स्नेलन्स चार्ट क्या, आप गए होंगे डॉक्टर साहब के पास, यू वुड हैव सीन वहां पे ये जो आई चार्ट आपको दिख रहा है वैसा आई चार्ट रहता है। तो मैं आपको अगेन आपको पिक्चर डिस्प्ले हो रही होगी आई चार्ट की, इसको आपको प्रिंट कराना है A3 साइज में, A3 A4 से बड़ा होता है थोड़ा, एंड लैमिनेट करके अराउंड ऐसी जगह पे टांगो जहां से यू कैन सिट 6 फीट, और आई थिंक नॉट 6 फीट, 6 मीटर्स, आप 6 मीटर बैठ सकते हैं वहां से, या 6 मीटर रहता है, 6 फीट या सॉरी 6 फीट की दूरी पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो टेक अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, और उससे ज्यादा पे भी आप बैठ सकते हैं। तो वहां पे आपको अराउंड अपने आई लेवल पे टांग दो उस आई चार्ट को लाके, स्नेल चार्ट को लाके, एंड यू हैव टू क्लोज वन ऑफ योर आईज जैसा कि वहां पे होता है, एंड रीड इट। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी मेमोरी का यूज होता है, ठीक है, कि आपको कुछ चीजें होती है जो आपके मेमोरी में होती है। जैसे आप अगर कोई एक जगह पे गए होंगे, या फिर मान लीजिए आपकी जो रीडिंग की किताब ही रहती है, अब आपको मान लो हाई मायोपिया है, एंड आप यू आर फेमिलियर विथ रीडिंग इट बाय वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, बट किसी दिन आपकी स्पेक्टिकल्स गुम हो जाती है, बट आप सेम जो किताब है उसको अपने सामने लाते हैं, तो आपने उसको अराउंड 100 टाइम्स अगर आपने उस किताब को पढ़ा होगा, उस लेटर को पढ़ा होगा, तो यू हैव नो डिफिकल्टी। आपका जो दिमाग है ना, वो छोटे छोटे हिंट्स जो होंगे उनसे जोड़ के वो जो उस वर्ड का मीनिंग है आपको मिल जाएगा। सिमिलरली दिस इज स्ट्रेंथनिंग योर आईसाइट विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप कहां तक उस आई चार्ट में कितने डिस्टेंस से आप कितने नीचे तक आ सकते हैं। वैसे स्नेल चार्ट को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो मैं बना दूंगा। तो यू हैव टू कीप सम डिस्टेंस, ठीक है। आपको पहले एक डिस्टेंस ऐसा रखना है, 6 फीट पे सीधे जाके नहीं बैठ जाना है। यू हैव टू मेजर, इंची टेप होगी आपके पास, नहीं होगी तो मैं उसका भी भाई लिंक डाल दूंगा। तो आपको देखना है, सामने जाना है, लेफ्ट आई फर्स्ट, देन राइट आई में जाके देखना है कि आपको 6th जो लाइन है, जो कि एंड लाइन है, 6th या 7th लाइन जो भी है, तो उससे आप कितनी डिस्टेंस पे वो 6th लाइन आपको क्लियरली दिख पा रही है अपने आई से, लेफ्ट आई या फिर राइट आई से, एंड उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से थोड़ा सा पीछे होके आपको प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, एट द एंड इट इज अ टेस्ट कि उस दिन पर्टिकुलर धीरे धीरे आपकी आईसाइट इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स 6 फीट से आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन तक ही, डिपेंडिंग अपॉन योर पार, आप देख पाएंगे। एंड धीरे धीरे जैसे कि आपकी आईसाइट इंप्रूव होगी, यू विल बी एबल टू सी कि और ज्यादा क्लियर होते जा रही है इमेज। रिपीट बोथ फॉर बोथ आईज, ठीक है। आपको करना कैसे, मान लो यू सॉ ए आपने देखा, तो ए जैसे ही आपने देखा, क्लोज योर आईज, काउंट टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट करो, फिर खोलो। फिर आपने जेड देखा, ब्लिंक करो, ब्लिंक करके आईज क्लोज करो, क्लोज करने के बाद 1 2 3 4 10 तक जाओ, फिर वाई देखो, फिर आपने ब्लिंक करना, फिर वाई देखना है। ऐसे फॉलो करते करते आपको नीचे आना है, एंड जहां पे आपको लगने लगे कि यार यहाँ पे ब्लरीनेस आ रहा है, यू हैव टू स्टॉप देयर, बस वहीं तक। जैसे ही आपने स्नेलन्स चार्ट पढ़ लिया, यू हैव टू गो फॉर वेपर ट्रीटमेंट। वेपर ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, अगर आपके पास वो वेपर वाली मशीन है देन इट्स ऑलराइट, नहीं है तो आप गैस पे मम्मी को बोलो या फिर खुद कर लो, भाई खुद कर लो पानी गर्म कर लेने के लिए। एंड वेपर ऑफ कोर्स ज़्यादा हॉट होना चाहिए, हैंडल विथ केयर प्लीज, हाथ मत जलाना अपना। एंड यू हैव टू क्लोज योर आइज, आंखें खोली नहीं रखनी है, थोड़ी दूर पे रखना है। एंड यू हैव टू हीट योर आइज, हीट क्या, वही टेक द वेपर विथ क्लोज्ड आइज फॉर अराउंड 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट तक आप रखो इसको, एंड कवर योर सेल्फ
so that the eyes get warmed. आंख खोलना नहीं है, अपने आंखों को बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट से नहीं जला नहीं लेना. यू हैव टू जस्ट रिलैक्स योर मसल्स. अभी आपने एक एक्सरसाइज करी, इट इज सोना फॉर योर आइज. ये सिंपल बात है, आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे आइज की, इसके लिए. नाउ आफ्टर यू आर डन विथ वेपर, तुरंत एक कोल्ड पैक. अगर आइस है तो बहुत अच्छा, पहले आप एक कॉटन स्वैब लो, आइस डालो या फिर आइस का जो ठंडा पानी रहता है उससे गीला करो उसको पूरी तरीके से, एंड बस ठंडा करना है आपको कॉटन स्वैब को और डाल लेना अराउंड फॉर 4 to 5 minutes. You can do it for 10 minutes also, क्योंकि और ये लास्ट एक्सरसाइज है. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज. उसके बाद आप अपने आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं. ज़्यादा देर तक करोगे तो नींद भी आने लगती है, एंड तो इसको बहुत ज़्यादा कराए और भाई बहुत जोरों की नींद आती है. ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ. So these were the exercises that I had to mention, and there are many more exercises depending upon what your power is and how much time you have. Okay, then moving on to the daily habits. Now हम उस daily habits की बात करेंगे जो आपकी आई को डैमेज करती है. And there are basically 3 to 4 habits जो कि आजकल सबके पास ही है. All of the people are following that particular habit. This is the first thing. क्या है? द फर्स्ट थिंग इज द एब्सेंस ऑफ डे लाइट. जैसे हम ज्यादातर जो रहते हैं हम रूम में रहते हैं, तो रूम में व्हेन यू आर एट रूम, डे लाइट या फिर सनलाइट जो कि मेन सोर्स ऑफ लाइट है. अगर आप किसी भी कैमरा पर्सन से भी पूछोगे तो ही और शी वुड प्रेफर कि अपनी जो कैमरा जो फोटोग्राफी वो ज्यादातर वो डे लाइट में करे. सिमिलरली आवर आईज आर बेस्ट सेट टू रीड सर्टेन थिंग्स और टू वॉच सर्टेन थिंग्स ड्यूरिंग डे. ठीक है, तो ट्राई नॉट गो इन डे लाइट. मतलब अगर आपको कहीं से अगर मौका मिले तो यू शुड डेफिनेटली हैव सम डे लाइट, स्पेंड सम टाइम इन योर डे लाइट, सम ऑफ योर टाइम इन डे लाइट, क्योंकि लोग नहीं कर रहे हैं. दे आर इन कंप्लीट डार्कनेस ऑल द टाइम. आप सुबह में भी ट्यूबलाइट जला के पढ़ रहे हो, रात में भी ट्यूबलाइट जला के पढ़ रहे हो, तो दैट लीड्स टू डिटोरिएशन. आपके जो आई है ना उसका स्टिमुलस जो होता है इट गेट्स लेट्स से डैमेज्ड. So you have, this is one of the eye damaging habits. The second habit is the study environment or the living environment. भाई अब ये बहुत ज़्यादा important environment है. अब बात क्या हो रही है, अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आप किसी गांव में चले जाओ और गांव में आप किसी मेजोरिटी की बात हो रही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. आप किसी खेत में काम कर रहे किसान से या मजदूर से पूछोगे कि या फिर उनकी आप आईसाइट चेक करोगे, इट इज ऑलवेज 6/6, बिकॉज वो जो उनका लिविंग एनवायरनमेंट है ना, दैट पर्टिकुलर लिविंग एनवायरनमेंट रिक्वायर्स देम टू सी फार. देयर आई इज ट्रेन्ड. और आई एक ऐसी चीज है ना, जस्ट लाइक एनी अदर मसल. अगर मैं आदत डाल लूं कि मेरे जो स्क्रीन, मेरा और मेरे आई का और मेरे स्क्रीन का बीच का जो डिफरेंस है इट इज 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी दूर पे रख के अपने लैपटॉप या फोन को चलाते हैं, एंड यू यूज इट फॉर 1 year 2 year, आपकी आंखें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, इट विल गेट ट्रेन्ड फॉर मायोपिया. सो द फर्स्ट थिंकिंग कि आप जब जैसे खास करके इन द टाइम्स ऑफ द पैंडेमिक, आप घर में रहे, आप घर में आपकी जो दीवार है वो कितना ज्यादा से ज्यादा कितना दूर होगा, आप घर ही में रहेंगे, 6 फीट 7 फीट 8 फीट, लेट्स से 10 फीट दूर है आपके, अब 10 फीट से कम ही होगा लोगों का, लेट्स से 8 फीट दीवार आपकी दूर है, एंड सुबह शाम रात दिन आप 8 फीट मैक्स डिस्टेंस आपके आई ने सेट कर लिया है. तो थोड़ा मोड़ा चेंज जो होता है ना 0.25 0.5 का, वो आएगा ही आपके ये जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है. अगर आप बाहर जाते हैं तो ये चेंजेस नहीं आ सकते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर आर पीपल हु विल वर्क देयर होल लाइफ ऑन पर्टिकुलर कंप्यूटर, पर उनकी आई साइट कभी नहीं जाएगी. और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करा बट उनको फिर भी चश्मे लगे हुए हैं. सो दैट इज अ पर्टिकुलर डिफरेंट थिंग. मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, और जिसको भी चश्मे लगे हो, इफ दे डू द प्रॉपर एक्सरसाइजेस एंड टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस, इट कैन बी हैंडल्ड, इट कैन बी क्योर्ड मोस्टली. तो यू नीड टू देन मूव ऑन टू द लाइटिंग यू यूज. द लाइटिंग यू यूज इज बेसिकली ऐसा हो जाता है कि आप या तो बहुत ही लो लाइट यूज करते हैं जिससे आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है. यू नो देयर आर रॉड्स एंड कोन्स. कोन्स इज फॉर परसेप्टिंग कलर एंड रॉड्स आर देयर फॉर परसेप्टिंग द brightness of the light that is there. तो भाई try to use, ये आप खुद से भी सर्च कर सकते हो. And at the end, जैसा कि मैंने बोला, I will be hosting a webinar soon, I think on the 27th. I will tell you about in detail at the end of the video.
तो आई विल टेल यू अबाउट इन दैट कि यूज ऑप्टिमम लाइटिंग, ना ज्यादा आपके पास, ना यू शुड यूज ज्यादा लाइटिंग, ना यू शुड यूज वेरी लो लाइटिंग. सो you need to improve that particular thing. Then the best thing and the most common thing that has led to eye damage वो है screen time. अब देखो screen time ऐसी चीज है कि आप, मैं आपको नहीं कह सकता कि आप भाई फोन चलाना छोड़ दो तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता. मैं खुद फोन चलाना या फिर लैपटॉप चलाना नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज इट हैज बिकम अ नेसेसिटी. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू लिमिट दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, अगर आपने लिमिट नहीं करी इस पर्टिकुलर चीज को, अगर आप लेट्स से यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स, जो कि आजकल एक नॉर्मल हो गया है, बीट डेस्कटॉप, बीट लैपटॉप और बीट फोन, इट हैज बिकम नॉर्मल. और इससे भी हमारी आईसाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है. इफेक्ट क्या हो रही है? मायोपिया हैज इंक्रीज्ड. क्योंकि जैसा कि मैंने लिविंग एनवायरनमेंट की बात करी, जब आप इतने सामने से किसी चीज को देखते हैं ना, वी आर एडेप्टिव स्पीसीज. हम एनवायरनमेंट के हिसाब से हम और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अडेप्ट करते जाते हैं. अगर मैं आपको 10 साल के लिए माउंटेन्स में छोड़ दूं, आपकी आईसाइट ना 6x6 से भी बेटर होगी. बट इफ द सेम थिंग इज डन एंड यू आर सिट इन अ रूम ऑफ 6x4 फुट, तो आपको मायोपिया होगा ही होगा, बिकॉज आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी उस स्टिमुलस को देख देख के कि माई पर्पज ऑफ दिस वुड बी टू सी जस्ट 6 feet एंड नॉट ब्रॉडर देन दैट. ओके, तो स्क्रीन टाइम, दीज वर द 4 पर्टिकुलर थिंग्स जिसको आपको ध्यान में रखना है. डे लाइट आप नहीं देखते हैं. स्टडी एनवायरनमेंट या लिविंग एनवायरनमेंट आपका ऐसा है कि आप 6 फीट 7 फीट की दूरी से ज्यादा देखते ही नहीं. यू आर मोस्टली इंडोर्स, कीवर्ड ये है. द लाइटिंग यू यूज, या तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट यूज कर लेते हो या फिर बहुत ज्यादा डिम लाइट यूज करते हो. द 4th टाइम इज स्क्रीन टाइम. सो व्हाट आर डेली हैबिट्स दैट यू नीड टू इनकलकेट? ये तो हमने बात कर ली कि यार आप ये सारी चीजें कर रहे हो जिससे आपकी आईज को डैमेज हो रहा है. और व्हाट शुड यू डू टू इम्प्रूव ग्रेजुअली? और ये जो इम्प्रूव होगा ना, जैसे लेट्स से योर पावर इज -2.5 -3, तो टोटली डिपेंड करेगा आपके बॉडी पे, डिपेंड करेगा आपके एक्सरसाइज पे, डिपेंड करेगा आपका एनवायरनमेंट पे, डिपेंड करेगा. और किसी के लिए ऐसा नहीं बोला जा सकता. कोई होगा जिसका -3 से -2 1 मंथ में भी आ जाए, होता है ऐसा. और किसी किसी को -3 से -2 आने में 2 मंथ्स 3 मंथ्स लग जाए. सो द बेसिक थिंग इज टू हैव पेशेंस एंड फॉलो ऑल दीज हैबिट्स एंड मेक देम एज अ लाइफस्टाइल. ऐसा नहीं कि जस्ट एज आई क्योर इट आप छोड़ दोगे, देन अगेन योर आईसाइट विल डिटोरिएट. सो यू नीड टू टेक पर्टिकुलर केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, अबाउट दीज पर्टिकुलर हैबिट्स. सो अब हम बात करते हैं हैबिट्स आपको क्या क्या सही रखनी चाहिए. आपको हैबिट्स की बात करेंगे तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, और आई पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, एक आपके जनरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 आवर डेली आप बाहर जाओ. डेली 1 आवर, या फिर उससे ज्यादा अगर जा पाओ. लाइक मैं तो यार फ्लैट में रहता हूँ, तो मैं, और एनवायरमेंट भी उतना सही नहीं है कि मुझे 1 आवर मैं डेली स्पेंड करूँ बाहर. ऑफकोर्स आई गो फॉर वॉक, बट इफ यू आर इन अ विलेज या फिर आपको चलने का ग्राउंड वगैरह है, यार डेफिनेटली गो देयर. अब होगा उससे क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको जाने के लिए, आप बाहर जाएंगे, देर यू विल ऑब्जर्व न्यू थिंग्स अलग अलग डिस्टेंस पर. जैसे आप चल रहे हैं तो देखो, आप अपना चश्मा पहन के तो नहीं जाओगे पहले, ठीक है? चश्मा पहन के आपको नहीं जाना है, आपको देखना है दूर की चीजों पे. जैसे कि अगर आप कभी कभी आप चश्मा पहन भी सकते हो इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको ब्लर दिखने लगे, तो इन दैट केस यू डेफिनेटली वेयर. अगर आपका हाई पावर है, -3 है, -3.5 है, बट फॉर -2.5 -2 इट इज ओके. आप थोड़ा देर के लिए निकाल सकते हैं चश्मा, और या फिर डिफरेंशियल्स यूज कर सकते हैं. डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट भी मैं बताने वाला हूँ इसके बाद. सो जब आप 1 घंटा स्पेंड करते हैं बाहर, तो मोस्टली आप 6 फीट या 7 फीट की दूरी पे नहीं देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इन्फिनिटी पे देखते हैं हमेशा. एंड वेन एवर यू गो फॉर वॉक 1 आवर, और उस समय डे लाइट, थोड़ी सी डे लाइट रहे बस, तो भी ठीक है. और आप थोड़ा दूर दूर देख के चले. लाइक यू शुड एक्सरसाइज, कुछ भी टेम्पलेट या फिर नेम प्लेट या फिर कोई पोस्टर है, तो उसको आप फोकस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज पर, ठीक है? तो दिस वे योर आईज विल गेट ट्रेन्ड. अब ये देखो, आप 1 घंटा कर तो रहे हो, और ट्राई टू एंजॉय इट. अदरवाइज बस आप इसके लिए जाओगे कि बाहर आप पोस्टर पढ़ने निकल रहे हो ना, टेक समवन विथ यू, बातें वगैरह करते रहो और देखते रहो दूर में. तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, प्लस योर आईज विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है? बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट इट इज अ वेरी गुड हैबिट टू हैव, ठीक है? द सेकेंड थिंग इज रीड. ओके, रीड, ट्राई टू
रीड मोस्टली इन डे लाइट और यूज एडिक्वेट लाइट. एडिक्वेट लाइट मतलब ना ज्यादा ना कम. द सेकेंड थिंग इज मेजर योर डिस्टेंस फ्रॉम द बुक्स. अब आपका देखो सबका अपना अपना नियर व्यू पॉइंट होता है, जैसे कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें आप बिना चश्मे पहने तक देख सकते हैं, है ना. आप उस पर्टिकुलर दूरी के बाद आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है. तो आपका पावर अगर -3.5 भी है, -4 भी है, तो आप हो सकता है 5 सेंटीमीटर तक आप क्लियर देख सकते हैं. तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जहाँ पे मतलब जस्ट थिंग्स स्टार्ट गेटिंग ब्लर्ड, वहां पे रख के आप अपने रीडिंग मटेरियल को रख के आप पढ़ सकते हैं. एंड आई विल टीच यू इन द पर्टिकुलर वेबिनार दैट आई एम कंडक्टिंग ऑन 27th कि भाई आपको वो डिस्टेंस कैसे मापना है, ठीक है. सो ट्राई टू कीप योर बुक्स एट अ डिस्टेंस विच इज लाइक रियली गुड डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन जहाँ आपका कंफर्ट भी हो, ज्यादा दूर भी ना हो जाए. एंड आपको ये हैबिट ऐसी बनानी है ना कि आप इसको कंटिन्यू कर पाए. ऐसा नहीं कि आप 7 दिन आपने किया बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करके अपने आप को, एंड 8वें दिन अगेन आप यू आर लाइक दिस, यहाँ पे आप रख के अपनी किताब को पढ़ रहे हो. यू शुड मेंटेन सच अ हैबिट विच इज सस्टेनेबल विद टाइम, ठीक है. और ना द थर्ड एडवाइस, जो कि मुझे खुद पे लागू करने पे थोड़ा सा मतलब भाई प्रॉब्लम हो सकता है, सबको प्रॉब्लम होगा, बट इफ यू वांट टू क्योर योर आईज इट इज इम्पोर्टेंट. आप ये स्क्रीन देख रहे हो, मैंने पीछे का बैकग्राउंड इसलिए ग्रीन कर रखा है क्योंकि ग्रीन इज अ सूदिंग कलर. ओके, सो रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम. भाई अब रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम का मतलब देखो आप हटा तो नहीं सकते हो फोन को, दैट इज वेरी क्लियर. तो ट्राई यूजिंग बिगर स्क्रीन. फोन से ज्यादा प्रेफर करो आप डेस्कटॉप. डेस्कटॉप को भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखो आप, ओके. ज्यादा आंख पे सटा के नहीं रखना है आपको. और लैपटॉप भी, क्योंकि लैपटॉप भी आप यू शुड कीप इट अराउंड एट आई विल से 25 to 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, वट एवर डिस्टेंस यू आर कंफर्टेबल एट. हो सकता है अगर आप हाई पावर के ग्लासेस पहनते हैं तो आप ज्यादा दूर ना रख पाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. यूज इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. कीप यूजिंग बिगर स्क्रीन एंड रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम. यार अब रिड्यूसिंग योर स्क्रीन टाइम में भी आप बोल सकते हो यार भैया कैसे करें कैसे करें. देखो यार ये तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको खुद से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज एवरीबडीज टाइम टेबल इज डिफरेंट, एवरीबडीज प्रायोरिटीज इज डिफरेंट. आपका टाइम टेबल अलग है, आपका एनवायरमेंट अलग है, आपके काम अलग है, तो एक जनरल एडवाइस देना तो पॉसिबल नहीं होगी. बट द कीवर्ड इज यार रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, कीप इट टू मिनिमल. या फिर एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो कि इससे ज्यादा यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर फोन. और अगर यूज करना ही है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्राई टू यूज योर लैपटॉप और डेस्कटॉप. द फोर्थ एडवाइस, अब ये देखो ये एक्सरसाइज की कैटेगरी में आनी चाहिए थी. एंड अब मैं जो कि ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, सो ओनली द इंटरेस्टेड ऑडियंस आर देयर. सो फॉर यू पीपल प्रैक्टिस एक्टिव फोकस. अब ये जो जेक स्टीनर की जो वीडियो आपने देखी है, उससे भी आप जान सकते हैं, अगर इफ यू हैव सीन इट देन यू वुड हैव नोन इट. और बाकियों के भी है यार एक्टिव फोकस मेथड, बट ये ना सिंपली कहूँ तो ये ट्राटक का एक फॉर्म है. इसको लोगों ने मतलब भाई बहुत ज्यादा आई विल से हवा तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा हाइप करके रख दिया. एक्टिव फोकस यार बड़ा फैंसी नेम है, तो अच्छा लगता है. बेसिकली तो ट्राटक, तो ट्राटक में करना क्या होता है. टेक अ प्लांट. आपके घर में अगर गमले होंगे, ठीक है, गमले वगैरह होंगे, अगर नहीं है तो यार एक गमला ले लो छोटा सा, या फिर बड़ा सा जैसा भी. या फिर अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पेड़ वगैरह है सराउंडिंग में, अगर बाहर है पेड़ वगैरह, कोई भी एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज, लेट्स से लीफ, ठीक है. लीफ इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि नेचुरल भी है. अब लीफ जो है ना, आप अपनी एक आई क्लोज कर लो. लेट्स से हुएवर आपकी जो भी विच एवर आई इज वीकर, लेफ्ट आई और राइट आई, अगर दोनों बराबर वीक है तो एक एक करके दोनों को 5-5 मिनट तक क्या करना है आपको. यू नीड टू कीप लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर लीफ. कोई एक लीफ सेलेक्ट कर लो और अराउंड है ना आप एक ऐसे डिस्टेंस पे रखो जहां से ब्लर हो, ठीक है. अराउंड आप रख लो कि अब डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द लीफ. अगर इतनी छोटी सी लीफ है देन यू कैन कीप इट एट अराउंड 2 हाथ के डिस्टेंस पे रख लो, अकॉर्डिंग टू यू, जहां पे भी वो ब्लर्ड रहे, क्लियर नहीं दिखना चाहिए. एंड फॉर 5 minutes जस्ट कीप लुकिंग एट इट, जस्ट कीप लुकिंग एट इट. एंड जब भी आपको लगे कि यार ब्लिंक नहीं करना, जब तक कि आपको बहुत ज्यादा पेन वगैरह होने लगे, मन करे कि भाई अब तो आई शुड क्लोज माई आईज, देन जस्ट ब्लिंक वंस, जस्ट ब्लिंक वंस.
and just keep looking at that particular leaf एंड डोंट फोर्स एनीथिंग, कुछ नहीं, बस उस लीफ पे फोकस करो एंड यू विल नोटिस कि 2 या 3 मिनट में, सबका ये टाइम डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन इट एंड आपको देखोगे कि पहले आप बस लीफ को देख पा रहे थे और हल्का हल्का कुछ लाइंस एंड स्केल्स दिख रहा था, लेकिन तीसरे या चौथे मिनट में, मे बी इन द फर्स्ट और सेकंड मिनट डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू व्यू इट, आप देखोगे कि जो आपका पत्ता आप देख रहे थे ना, आई प्रैक्टिस इट, तो मेरे साथ तो हुआ है, it start getting clear, it starts getting clear and you can see the lines and you can see the division कि क्या division बना हुआ है, छोटी छोटी lines हैं, उस पे भी छोटे छोटे parts वगैरह बने हुए हैं एंड आप एक बार ब्लिंक करोगे, फिर से फोकस करोगे, देखोगे यार वो गायब हो गया, वो क्लैरिटी गायब हो गई। तो व्हेन यू प्रैक्टिस इट फॉर, मैं तो कहूँगा स्टार्ट विथ 5 मिनट्स दोनों आई का, प्रेफर करो कि जो वीकर आई है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर एक की पावर -3.75 है और दूसरे की -3.25 है, देन यू शुड गो प्रैक्टिस विथ -3.75 मोर। और ये जो सारी एक्सरसाइजेस है ना, इनको यार डिफरेंट डिफरेंट आइज करके प्रैक्टिस करो, ठीक है, अनलेस जो कि जैसे कि पामिंग वगैरह है, तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट आइज करके नहीं कर सकते हो, सॉरी, पामिंग एंड दी सन एक्सरसाइज वगैरह, द वन विच नीड टू बी डन सेपरेटली, आप वीकर आई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, बिकॉज जैसे ही आप वीकर को, जो आपका ऑलरेडी नॉट सो वीक है, वीकर से कम है, जो वीकर से जो बेटर आई साइट है, जो लेस वीक है ऑफकोर्स, उसके इक्विवेलेंट में ले आओ ना, उसके बाद यू कैन डू द एक्टिविटीज मच फास्ट। क्योंकि मेरे केस में मैंने वही गलती करी थी। मैंने क्या करा कि मैंने लेफ्ट आई जो मेरी थी वो भाई खत्म, एकदम खत्म केस उसका था, एंड राइट वॉज -1.25, -1.75, लेफ्ट था साला -3.5। अब यार -3 मैं दोनों आई को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ -1.75 से -1.25 तक पहुंच गया, लेकिन यार लेफ्ट आई जो थी -3.75 की -3.75 ही है। फिर मुझे पता चला कि यार यू शुड एक्सरसाइज योर आई डिफरेंटली, सेपरेटली, ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। और ये एक्सरसाइज में कहूँगा 5 दिन 5 मिनट करो, 5वां दिन खत्म होता है, इंक्रीज इट टू 10 मिनट, देन इंक्रीज इट टू 15 मिनट, मतलब ऐसा कर लो कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे, यू कैन डू इट डेली, सस्टेनेबल रखो अपनी सारी एक्सरसाइजेज, ऐसा नहीं कि 1 महीने करी और छोड़ दी वगैरह। क्योर योर आई साइट, और उसके बाद आप थोड़ा जो एडजस्टमेंट वगैरह करनी होगी, यू कैन डू इट। अब बात करते हैं फाइनली द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज डाइट, दैट इज डाइट। और डाइट में यार आपने सुना होगा आपने ये सुना होगा, बट इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल। एप्पल या कोई भी एक पर्टिकुलर एप्पल, तो यार मैं कहता हूँ एप्पल आप एक रख ही लो, अपने से जाके ले आओ एप्पल, 1 वीक का 1 kg ले लो, 1 वीक का 1 या 2 एप्पल आप डेली डेली खाओ, डिपेंडिंग अपॉन, मिनिमम 1 से 2 आप खाओ, ठीक है। छील के खाना, बिकॉज यार वो वैक्स वगैरह ज्यादा हो गए आजकल मार्केट में, चमकाने के लिए वैक्स वगैरह लगा देते हैं, सो छील के खाना बेसिकली। एंड एनी सीजनल फ्रूट, जैसे अभी अमरूद का सीजन चल रहा है, संतरा वगैरह, ये सब, ये यार अपनी डाइट में पक्का इंक्लूड करो, बिकॉज दीज कंटेन फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बारे में यार यू कैन सर्च, दीज आर स्मॉल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स वगैरह, आई कैन नॉट बी सो राइट, गलत भी हो सकता हूँ, बट द बेसिक थिंग इज involve fruit in your diet, especially apple along with some other seasonal fruit, वो आपको डेली छील के आदत बना लो, सुबह सुबह नाश्ते के पहले खाना ही खाना है। The second thing is cod liver oil. Cod liver oil is one other thing that you need to take. अब 1 to 2 आप ले सकते हो, मैं कहूँगा एक सुबह ले लो, एक शाम ले लो, खाने के बाद। Then on I will say ग्रीन वेजीज एंड टोमेटो। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या अवॉइड करना है। ग्रीन वेजीज में यार साग, लाल साग, हरी साग, पालक वगैरह सारी जानते हो, बथुआ वगैरह, वो सारे, टमाटर, ये सारी चीजें यार यू शुड डेफिनेटली इन्वॉल्व। मैं तो कहूँगा बढ़ा दो इसको। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये सारी चीजें साथ में होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप डाइट तो हरी कर लिया आपने पूरी पूरी, पर स्क्रीन टाइम कम नहीं किया, देन हाउ विल यू गेट द बेनिफिट यार। if you have if you have improved your daily habit but आपने डाइट ठीक नहीं करी, तो भी आपका जो इम्प्रूवमेंट है उसमें टाइम लगेगा। ये सारी चीजें करोगे ना, then the improvement will get better,
बिकॉज देखो बेसिकली डाइट का रोल क्या है ना, डाइट का रोल ये है कि आपके बॉडी को एक पर्टिकुलर गुड फेस पे ले आए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपका हेल्थ लेवल अच्छा हो। अब जिनका हेल्थ लेवल अच्छा नहीं होता, आप देखोगे कोई भी छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है वो ठीक होने में उनको टाइम लगता है। पर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिनका हेल्थ फिटनेस लेवल अच्छा होता है, जो वॉकिंग वगैरह करते हैं डेली, जिनका खून कहते हैं ना खून चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इज गुड, ऑक्सीजन फ्लो इज गुड, तो उनसे जो कोई भी दवा होती है, कोई भी एक्सरसाइज होती है, उन पे ज्यादा जल्दी काम करती है। तो ये जो वॉकिंग वगैरह है ना, वॉकिंग करने को कहा मैंने, आई को छोड़ के ये भी इसका बेनिफिट है। एंड एनी एक्सरसाइज दैट यू डू वुड एक्ट स्विफ्टली एंड मोर इफेक्टिवली ऑन यू। अब अगला क्या है, अगला एक पर्टिकुलर मैं कहूंगा आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है, नॉट ऑइंटमेंट, आई विल से सप्लीमेंट, महा त्रिफला घृत। पॉज करके लिख लो ये सारी चीजें, महा त्रिफला घृत। अब इसको आप मिल्क के साथ ले सकते हैं, एंड आप जहां भी जिस भी दुकानदार से वगैरह लेने जाएं, आप यू कैन आस्क हिम, एंड दूध के साथ इसको लेते हैं, एंड ही विल टेल यू द टाइमिंग। अदरवाइज इट्स बेटर, और भी अच्छा है अगर आप किसी आयुर्वेदाचार्य वगैरह हैं, पतंजलि हो गया या फिर कोई भी दूसरा आयुर्वेदिक आचार्य हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। सो ही विल टेल यू अबाउट हाउ टू टेक इट डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, ठीक है। अदर थिंग इज आंवला। नाउ यार आंवला इतनी इफेक्टिव चीज है, अगेन आपको एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसा नहीं आंवला खा रहे हो एंड फोन चला रहे हो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के, देन इट इज नॉट मच इफेक्टिव यार, कोई फायदा नहीं है उसका जब आप आंख अपनी खराब ही कर रहे हो वैसे। तो आंवला आप ले रहे हो, आंवला इज नोन फॉर इट्स क्योरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आईज, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज कि आपको कफ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है यार, तो थोड़ा सा आयुर्वेदाचार्य को आप कोई भी आयुर्वेदाचार्य हैं या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मैं तो आयुर्वेदाचार्य कह रहा हूँ, लाइक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनको आप कंसल्ट कर लो। तो आंवला की यार बहुत सारी चीजें, आंवला का जूस आता है, आंवला के चॉकलेट्स आते हैं, आंवला की लॉलीपॉप आती है, आंवला का अचार होता है, बहुत सारी चीजें हैं आंवला की, ठीक है, वो कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन, आपको मैं बताता हूँ एक और पर्टिकुलर चीज जो कि इसे कहते हैं त्रिफला। नाउ व्हाट इज त्रिफला? त्रिफला को आप मतलब बेसिकली आप खाने में भी इंक्लूड कर सकते हो, बट इट इज नॉट अबाउट खाने में इंक्लूड करने की चीज, इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो कि मैं भूल गया था। सो जो ज्यादा सीरियस है उनके लिए सही है, क्योंकि ओनली दोज पीपल वुड बी वॉचिंग टू दिस पर्टिकुलर एंड। तो त्रिफला क्या है, आपको त्रिफला 1:2:3 के रेशियो में आंवला, हरे और बहिरा रहता है, ठीक है। ये आप एक बार सर्च कर लेना, ये जो रेशियो होता है। एंड इट्स बेटर कि आप ना आंवला, हरे, बहिरा अगर आप सूखा खरीद लो और कहीं से पिसवा लो, पाउडर बनवा लो, बेस्ट है, बेस्ट है। अगर आप आंवला, हरे, बहेरा आप खरीद लो, आंवला, हरीतकी और जो भी बहेरा, यही तीनों चीजों से बनते हैं, और अपने से ना खरीद के वो ड्राई सूखे बाजार से ले लो यार, 1 किलो 2 किलो जितना भी आप लेते हो, एंड मेक अ पाउडर आउट ऑफ इट। वो हो गया आपका त्रिफला चूर्ण। अगर नहीं है वैसा कोई बात नहीं, डाबर या किसी भी अच्छी ब्रांड का या फिर कोई ऑर्गेनिक ब्रांड का जो ज्यादा यार मेल मिलावट ना करे, उस ब्रांड का ले लो। करना क्या है आपको बताता हूँ, एक ग्लास लेना, ग्लास कांच के ग्लास तो होगा ही आपके घर में, वो कांच का ग्लास लेना, एंड उसमें ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर डालना, ड्रिंकिंग वाटर डाल देना, फुल कर देना ग्लास को, थोड़ा सा लेवल छोड़ देना, एंड ऐड 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून ऑफ त्रिफला इन इट। रात को, सुबह जब उठो उस पानी से, आई विल से आई कप, जिसका इसके बारे में मैंने मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, आई कप आपको यूज करना है। आई कप को यूज करते हुए आई कप में वो आप डालोगे उस पर्टिकुलर पानी को, ऐसा करना कि छान लेना उस पानी को एक कहीं पे, एंड आई थिंक कि वो सेटल ही हो गया होगा जो त्रिफला के जो पार्टिकल्स होंगे, उसको आई कैप में डालना, एंड कीप योर आई इन दैट आई कप फॉर अराउंड 1 मिनट 30 सेकेंड्स जो भी, एंड ब्लिंक इट। एक पर्टिकुलर जलन की सेंसेशन होगी दोनों आई में, उसको करना, ठीक है, सुबह उठने के बाद। दीज आर ऑल द थिंग्स
And okay, on 27th most likely I would be doing a live particular session, और एक closed session है. It is around on, it would be held on Zoom. और इसमें क्या होगा कि bring all the particular equipments. अगर आप तब तक अगर मंगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो I would be doing it live. ठीक है, ये जो सारी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दी ना, क्या है कि आप अपने से इंडिविजुअली फॉलो करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है. ठीक है, बट अगर मैं आपको एक बार बता दूं कि हाँ हाउ टू डू इट, तो आप उसको ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाओगे एंड रिजल्ट्स वगैरह भी आपको मिल पाएंगे. प्लस आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह भी हैं, क्योंकि यार देखो इंस्टाग्राम पे ना 100 के आसपास मैसेज, 100 मैसेज हमेशा मतलब रहते ही हैं ये. एंड इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि हर 100 मैसेज को यार मैं आंसर कर दूं और हर मैसेज को मैं पैराग्राफ में आंसर करूं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. So that is why I am keeping this particular webinar, and this webinar is strictly for iCure. यार please don't ask SSB questions in that, and that is why यार it would be, I would say, a closed session. ज़्यादा लोग इसमें नहीं रहेंगे. ठीक है, and that is why it is a like 2 hour सेशन. आई वुड से जितना भी टाइम लगेगा मुझे समझाने में और आप सबके डाउट क्लियर करने में, इट वुड बी हेल्ड. लिंक जो पर्टिकुलर गूगल फॉर्म की है वो नीचे दिया हुआ है, यू कैन फिल इट अप एंड मीट मी ऑन 27th. और उसके साथ साथ जो अभी तक यहाँ पे रुके हैं, आई वुड, यू आर माई लाइक कोर पीपल हु आर विथ मी टिल द एंड. सो यार आपके लिए एक अनाउंसमेंट है. वी आर एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. अराउंड 3-4 महीने से आई एम वर्किंग ऑन इट एंड यू विल सून गेट टू नो अबाउट इट. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना यार, ये कम्युनिकेशन स्किल खराब है, मेरी कम्युनिकेशन मुझे ठीक करना है. सो अबाउट दैट आई एम वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. यू विल गेट टू नो अबाउट इट वेरी सून. So thank you. That was it. Jai Hind.